Can I please request with a huge round of applause, Mr. Deepak Balani, Director General, Indian Sugar and Bioenergy Manufacturers Association, to please join us on stage for the opening remarks for our conference. Can we please welcome him with a warm round of applause, everybody? Thank you. Thank you. Good afternoon. Shri Ashwini Shrivastava ji, Joint Secretary Sugar, DSPD, dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, thank you Chini Mandi for inviting me for addressing the audience in this conference. I would like to congratulate Uppal and the entire team of Chini Mandi for organizing this beautiful conference. Definitely a very good gathering, and I must really commend the effort of Chini Mandi in getting the entire industry under one roof. Thank you, everyone. I will just take 5 or 7 minutes. Most of the issues have been covered by our earlier speakers. The industry is changing rapidly. What we have seen in last few days is something remarkable. जिस चीज़ का हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, अल्टीमेटली I would say fortunately, unfortunately, because of the war, there was a sense of urgency, and we saw that the government, because of the compulsion of energy security, finally launched an E85 fuel, with Maruti launching flex fuel vehicle. And the most interesting part was, as we always demanded the government that they should be compensated, the consumers should be compensated for the loss in efficiency, there must be a differential pricing conceptually. That was also agreed. E85 को लगभग 20 रुपए कम पे लॉन्च किया गया. ये इस समय बहुत बड़ा इनिशिएटिव कंज्यूमर्स को ना लगे, बट मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री. और अगर क्योंकि यहाँ पे अश्विनी जी बैठे हैं, ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ आवर कमिटी विच इज प्रिपेयरिंग द रोड मैप फॉर E20 एंड बियॉन्ड. अल्टीमेटली फ्लेक्स फ्यूल इज अ मॉडिफाइड आइस इंजन. तो सरकार को अब इस वक्त ये करने की आवश्यकता है कि 2027 से अगर सारे आइस इंजन्स हैव टू बी मैंडेटेड टू बी द फ्लेक्स इंजन्स, so that the customers can get a choice whether they want to fill E20 or they want to have E85 or they want to have E100. The choice should be given to the consumers. Assuming that happens, by 2030 we will at least see 50% of the vehicles on the road as flex fuel vehicles, and that will unlock almost 500 crore liter of ethanol utilization. और आप ये मान के चलें, this will do wonders for the energy security. What Ravi mentioned, that we are such a large country and such a large fleet that we don't look at only one solution. EVs and biofuels are here to coexist. We are not against EVs, but we feel that we have to have multi-pathway. EV भी चाहिए, flex भी चाहिए, CBG भी चाहिए, और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन भी होगा. तभी इस हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग अचीव कर पाएंगे. और एक और बहुत अच्छी चीज़ कल हुई, जब सरकार ने E22, 25, 27 और 30 के ऊपर उसको जो, क्योंकि इथेनॉल जो है वो GST प्रोडक्ट है और गैसोलीन जो है वो एक्साइज प्रोडक्ट है. तो अगर जैसे E20 के अंदर इथेनॉल कंपोनेंट में एक्साइज नील कर दिया था, सिमिलरली सरकार ने हायर ब्लेंड के ऊपर एक्साइज को नील नोटिफाई कर दिया. दिस इज अ वेरी बिग पॉलिसी इनेबलर, क्योंकि पहले BIS नोटिफिकेशन हुआ, फिर अब ये मैंडेट आया है. तो कहीं ना कहीं सरकार की ये एक सोच है कि आगे जाके हमें ब्लेंड बढ़ाना है, और हमें उम्मीद है कि जो संस्था E25 के ऊपर टेस्टिंग कर रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि टेस्टिंग सक्सेस भी हो जाएगी,
तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में वी कैन मूव डेफिनेटली टू हायर ब्लेंड, मे बी 20 to 25, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे किसानों को होगा, इंडस्ट्री को होगा, और कंज्यूमर को और देश को तो होगा ही होगा। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। और जैसे अश्विनी जी ने भी मेंशन किया कि जो रोड मैप कमेटी है, जो एक कमेटी फॉर्म की थी सरकार ने पिछले साल कि E20 के बाद आगे क्या क्या कदम उठाएंगे, उसकी भी रिपोर्ट लगभग फाइनल होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, और इससे कम से कम इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को, और जो इंडस्ट्री आगे इन्वेस्ट करने की सोच रही है, उनको भी एक क्लैरिटी आएगी कि सरकार अगले 5 साल या 10 साल में क्या चाहती है और क्या पॉलिसी रोल आउट होगा। इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि अश्विनी जी यहाँ बैठे हैं, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है इथेनॉल प्राइसिंग को। क्योंकि शुगर केन फीड स्टॉक की हमारे एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, या आप प्रॉब्लम बोल दें, हमें तो अच्छा ही लगता है कि किसानों को और आमदनी बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ऑलमोस्ट 75% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इथेनॉल का शुगर केन है, जो हमारा फीड स्टॉक है। तो अगर FRP 20% बढ़ जाती है और उसके सामने इथेनॉल प्राइस नहीं बढ़ता, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता की आवश्यकता है। क्योंकि DFPD के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर और इथेनॉल में बैलेंस बना रहे, ताकि स्टॉक भी बैलेंस्ड रहे। तो उनकी भी वो भी बड़े इंटरेस्टेड ये रहते हैं कि भाई इथेनॉल में भी डाइवर्ट हो, चीनी उतनी ही बने जितनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस को स्टेबलाइज रखना है। तो कहीं जो इथेनॉल प्राइसिंग में जो एक वैक्यूम है या गैप है, या सडनली लोगों ने ये बात करना बंद कर दिया है, शायद ये लग रहा है कि अब ये कुछ होगा नहीं इसमें, बट एज एस्मा हम अभी भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर ये प्राइस रिवाइज नहीं होता है तो अल्टीमेटली शुगर प्राइस के साथ जो पैरिटी, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी वायबिलिटी देखती है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये एक वक्त आएगा कि शायद इंडस्ट्री डाइवर्ट करना न चाहे या ज़्यादा चीनी बनाना चाहे। तो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, आज आपके पास दूसरे फीड स्टॉक हैं, बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि शुगर केन इस पूरे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का एक फाउंडेशन रहा है, एक बैकबोन रहा है। और ये अल्टीमेटली ये प्रोग्राम इनिशियली शुगर केन इंडस्ट्री के लिए लाया गया था, जहां हमें किसानों को राहत पहुंचानी थी। तो क्योंकि अभी तो फिलहाल मैनेज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास राइस भी है, हमारे पास मेज भी है, बट अल्टीमेटली शुगर केन को हमें नहीं भूलना चाहिए, और सरकार को इथेनॉल प्राइसिंग के ऊपर देखना ही चाहिए, स्पेशली शुगर केन जूस और बी हेवी को। उसके बिना ये आगे इंडस्ट्री में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। कई सारे मुद्दे आगे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रवि ने भी मेंशन किया कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब इस्मा ने भी एक पूरी लाइफ साइकिल एनालिसिस की है, स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू 1G इथेनॉल और उसका जो सैफ में कन्वर्जन है। और मुझे बहुत खुशी ये बताते हुए हो रही है कि जो हमारा देश का जो शुगर केन जूस से जो SAF बनता है, उसका जो लाइफ साइकिल इंडेक्स या कार्बन एमिशन इंडेक्स है, वो लगभग 22 है, 22 ग्राम ऑफ CO2 पर मेगा जूल, जो कि दुनिया में सबसे कम है। और इसके लिए हमें अपने आप से प्राइड लेने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं अब हम लोग इसको इंटरनेशनल आईकाओ में और कॉर्सिया मैंडेट के हिसाब से हम प्रेजेंट करेंगे। और हमारी बात मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से PNG से चल रही है, और हम चाहेंगे कि इस नंबर को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर दिया जाए, ताकि आगे आने के वक्त में जो इन्वेस्टर्स जो हमारे मिल SAF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कार्बन क्रेडिट्स का भी काफ़ी बेनिफिट मिल सके। तो ये बहुत आवश्यकता है कि कुछ पॉलिसीज़, कुछ रोड मैप SAF पे भी लाए जाएं। इसके अलावा जो फ्लेक्स फ्यूल अभी लॉन्च हुआ है, जहाँ तक ठीक है हमने E85 लॉन्च कर दिया, बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि फ्लेक्स फ्यूल को बनाने में आइस इंजन से थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज स्लाइटली हायर। तो कंज्यूमर एक्सेप्ट तभी करेगा जब एक प्राइस पैरिटी होगी आइस इंजन के साथ। तो वहाँ पे GST हमने फ्यूल पे तो कम कर दिया, लेकिन व्हीकल पे अभी भी ये एड्रेस नहीं हुआ है। तो व्हीकल के ऊपर
जीएसटी रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली कैफे नॉर्म्स, कि जब तक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को हम राहत नहीं देंगे तब तक वो बहुत मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। और इस फाइनली मैं अश्विनी जी का और डीएफपीटी का एक बहुत बड़ा धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिस ब्यूटीफुली और जो पॉलिसी और कोटा मैकेनिज्म से जो पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने बैलेंस किया है वो एक बहुत सराहनीय है, और प्राइसेस भी स्टेबल हैं, स्टॉक्स भी बिल्कुल स्टेबल हैं। बहुत सारे नॉइसेस आते हैं बट देखा जाए तो बहुत ही स्टेबल इंडस्ट्री चल रही है। हाँ, कुछ गैप्स हैं। एमएसपी, पहले भी बात हुई है बहुत बार एमएसपी के ऊपर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रेशर कहीं ना कहीं से आ रहा है और किसानों से भी आ रहा है। तो ये तो ऐसा मुद्दा है जो अश्विनी जी करा ही देंगे, आज नहीं तो कल। तो उसमें हमें इंडस्ट्री को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। वी आर इन वेरी गुड हैंड्स इन द गवर्नमेंट। एंड फाइनली ये सारे मुद्दे जो हैं, पूरी पॉलिसी जो है वो फेडरेशन हो या इस्मा हो, हम लोग सब मिल के साथ में इंडस्ट्री के साथ में डिस्कशन करके बहुत सारी चीज़ें हम ले जाते हैं। बहुत इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। अभी तक हम लोग शुगर की तरफ लगे रहते हैं बट हमें क्रॉप के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एरिया, वी डोंट सी दैट एरिया विल इंक्रीज सब्सटेंशियली इन कमिंग टाइम्स, बट वी विल हैव टू मेक श्योर दैट द फार्मर्स आर गेटिंग बेटर इनकम फ्रॉम द सेम एरिया। और जैसे अश्विनी जी ने अपने एड्रेस में कहा, इस्मा ने ऐसे 3 या 4 बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, स्पेशली ऑन शुगर केन। तो जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, क्योंकि हम आज कोई भी वैरायटी लाते हैं तो उसमें लगभग 12 से 15 साल लगता है, तो हमें ब्राज़ील में या जो ऑस्ट्रेलिया में एसआरए है वहाँ पे एडवांस ब्रीडिंग सिस्टम्स हैं, जो जीनोटाइपिंग फिनोटाइपिंग, जो कि कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ राइट फ्रॉम स्टार्ट टू द वैरायटी दैट विल कम डाउन सब्सटेंशियली टू अराउंड 7 to 8 years। हमें बहुत खुशी है कि इस्मा और फेडरेशन, अभी हाल फिलहाल में हम ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिले और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इस्मा और फेडरेशन आइजैक के थ्रू एक बहुत बड़ा बजट भी कमिट कर चुका है। और हमें ये भी बहुत खुशी है कि सरकार ने भी इसमें अपने इन प्रिंसिपल कमिटमेंट कर दी है। तो अब हम लोग इस सेंटर को रोल आउट करने के पोजीशन में हैं। इसके साथ साथ इस्मा ने एक सीड अवेलेबिलिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसानों को प्रॉपर सीड नहीं मिलता, ब्रीडर सीड या सर्टिफाइड सीड नहीं मिलती। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं कि किसान को नई वैरायटीज़ का स्पेशली अच्छी और सर्टिफाइड सीड मिले। हमें उम्मीद है कि 2 वैरायटीज़ जो हैं, जो 20,016 और 21,012, जो कि एक बहुत अच्छी वैरायटी निकल के आ रही है और लगभग 238 के बराबर की वैरायटी है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में। 20016 मोस्ट लाइकली विल बी अप्रूव्ड बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो नेक्स्ट ईयर प्लांटिंग में विल सी दैट वी विल हैव दिस वैरायटी, और नेक्स्ट ईयर वी विल ऑल्सो सी 21012। So a lot of effort is happening on the sugar cane, on the sugar side. We are hopeful that things will materialize, and overall the industry will benefit, the farmers will benefit, the country will benefit. Finally, I would like to thank Chini Mandi for inviting me, and I wish you all the best for next 2 days. Thank you very much. For a very passionate talk that he shared with all of us. Thank you so much. Please have a seat.